کہ دو ماہ کے بجلی بل ادا نہ کرنے والے صارفین ہو جائیں ہوشیار۔ مالی سال کے آخری ماہ میں فیسکو نے صارفین سے کوئی رعایت نہ کرنے کا عندیہ دے دیا۔ فیسکو نے 2 ماہ کے بل ادا نہ کرنے پر کنیکشن کاٹنے کے احکامات جاری کر دیے۔ فیسکو ہیڈ کوارٹر نے تمام سب ڈویژن دفاتر کو بجلی کے 2 ماہ کے بل ادا نہ کرنے والے صارفین کے کنیکشنز منقطع کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ فیسکو میں اس وقت 70,000 سے زائد صارفین کے نام ERO لسٹ میں شامل کر لیے گئے ہیں۔ بلوں کی عدم ادائیگیوں کی صورت میں کنیکشنز کاٹ دیے جائیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں آندھی اور بارش سے موسم خوشگوار، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ ٹھنڈی ہواؤں سے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے۔ شہری کہتے ہیں کہ گرمی سے ابر رحمت برسنے سے گرمی کی شدت میں کمی آئی ہے۔ فیصل آباد شہر میں آندھی اور بارش سے موسم خوشگوار، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ ٹھنڈی ہواؤں سے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے۔ شہری کہتے ہیں گرمی سے ابر رحمت برسنے سے گرمی کی شدت کم ہو گئی۔ جھنگ، گوجرا اور کمالیہ میں بھی آندھی اور بارش سے موسم خوشگوار۔ جھنگ شہر میں کالے بادلوں کا راج، اندھیرا چھا گیا۔ کمالیہ میں ابر رحمت برسا تو درختوں اور پودوں پر جمی ہوئی مٹی اور دھول بھی دھل کر صاف ہو گئی۔ ٹوبہ اور چنیوٹ میں بھی تیز آندھی چلی۔ گزشتہ 2 روز سے پڑنے والی گرمی سے چھٹکارا حاصل ہوا تو شہریوں کے چہرے بھی کھل اٹھے۔ محکمہ موسمیات نے رات میں دونوں شہروں میں موسلادھار بارش کی پیش گوئی کر دی۔ فیصل آباد میں تیز ہواؤں کے سامنے فیسکو کا ترسیلی نظام بے بس ہو گیا۔ آندھی سے فیسکو ریجن 100 سے زائد فیڈرز پر بجلی کی فراہمی متاثر ہوئی۔ اسلامیہ پارک، گلستان کالونی، پیپلز کالونی، محمود آباد، مسلم ٹاؤن، طارق آباد، غلام محمد آباد، احمد ٹاؤن، نشاط آباد اور جھنگ روڈ کے بیشتر علاقوں میں بجلی بند ہو گئی، جس سے شہری شدید اذیت سے دوچار رہے۔ چنیوٹ میں بھی تیز ہواؤں سے فیسکو کا ترسیلی نظام جواب دے گیا۔ شہر کے متعدد علاقے اندھیرے میں ڈوبے رہے، جس سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ چنیوٹ انتظامیہ کی غفلت یا عدم دلچسپی، کچہری روڈ خستہ حال اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ روڈ پر پڑنے والے گڑھے ٹریفک مسائل میں اضافہ کرنے لگے۔ سرکاری دفاتر بھی اسی روڈ پر قائم، مگر روڈ کی تعمیر و مرمت گزشتہ کئی سالوں سے نہ ہو سکی۔ چنیوٹ میں پنجاب ہائی وے اتھارٹی شاہراہوں کی تعمیر و مرمت کرنے میں غیر سنجیدہ۔ کچہری روڈ پر پڑنے والے گڑھے خوف کی علامت بن گئے۔ مختلف جگہوں پر پڑے گڑھے راہگیروں کے لیے مسائل کا سبب بننے لگے۔ کچہری روڈ پر گرلز ڈگری کالج، محکمہ تعلیم کا دفتر، محکمہ صحت، سول ڈیفنس سمیت ججز کی رہائشی گاہیں اور واٹر مینجمنٹ کا دفتر ہونے کے باوجود روڈ کا پیچ ورک نہ ہو سکا۔ بڑی شاہراہوں سمیت کچہری روڈ کی حالتزار ابتر ہونے پر شہری انتظامیہ سے نالاں نظر آتے ہیں۔ بہت عرصے سے یہ روڈ جو ہے استر دراز سے سکھا رہا ہے، جو بہت زیادہ گڈھے ہیں ادھر۔ اس روڈ پہ سرکاری ہسپتال اور سرکاری دفاتر بھی ہیں، ہسپتال، کالج بھی ہیں، ادھر جلد سے جلد اس روڈ کی تعمیر کروائی جائے۔ شہریوں نے حکومت سے تمام بڑی شاہراہوں کی تعمیر و مرمت کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ آپ کو بتائیں کہ کورونا کیسز میں کمی آنے لگی۔ ڈویژن میں 1 موت جبکہ 6 نئے کیسز رپورٹ۔ فیصل آباد میں 5 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ جھنگ میں 1 نیا مریض۔ چنیوٹ اور ٹوبہ میں کوئی نیا کیس سامنے نہیں آیا۔ آپ کو بتائیں کہ کورونا کیسز میں کمی واقع ہونے لگی ہے۔ ڈویژن میں 1 جاں بحق، 6 نئے کیسز رپورٹ۔ فیصل آباد میں 5 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ جھنگ میں کورونا کا 1 نیا مریض۔ چنیوٹ اور ٹوبہ میں کوئی نیا کیس سامنے نہیں آیا ہے۔ فیصل آباد میں فیلڈ آفیسز کا مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ پیدائش اموات کے سرٹیفکیٹس کے اجراء میں تاخیر سے شہری پریشان ہیں۔ فیلڈ آفیسز کے بڑھتے مسائل کم نہ ہو سکے۔ 157 UCs ختم کرنے سے مسائل بڑھنے لگے ہیں۔ 41 فیلڈ آفیسز مسائل کو قابو کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مسائل حل کرنے کی اپیل کر دی ہے۔ بلدیاتی نمائندگان کہتے ہیں کہ سرٹیفکیٹس کے اجراء میں غیر معمولی تاخیر کا سامنا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں کسانوں کی جانب سے کسان کارڈ پر کڑی تنقید۔ کسان رہنماؤں کا موقف ہے کہ حکومت کو براہ راست ریلیف مہیا کرنا چاہیے۔ کارڈ سے کوئی ریلیف نہیں مہیا ہوگا۔ ایسے اقدامات سے زراعت متاثر ہوگی۔ مزید تفصیلات کیا ہیں جان لیں گے اس رپورٹ میں۔ صوبائی نائب صدر کسان بورڈ پاکستان میاں ریحان اللہ کا کہنا ہے کہ محکمہ زراعت توسیع کی جانب سے ایسے اقدامات نہیں کیے جا رہے جس سے کسانوں کو آگاہی مل سکے۔ ایک پیچیدہ طریقہ کار ہے جس کی وجہ سے کسان اس آفر سے استفادہ حاصل نہیں کر پا رہے۔ کسان کارڈ جیسے حکومت نے اعلان کیا ہے یا حکومت کسان کارڈ بنا رہی ہے، یہ گھر گھر جا کے یا ہر گاؤں میں جا کے یہ کسان کارڈ کی انہوں نے مہم شروع کی ہے، تو یہ ویسے تو جیسے حکومت سمجھتی ہے کہ یہ بہت سہل اور آسان کام ہے،
मगर जब हम किसान की तरफ देखते हैं, अनपढ़ किसान की तरफ देखते हैं, ऐसे किसान की तरफ देखते हैं जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, तो उनके लिए इसका इस्तेमाल नहायत मुश्किल है, क्योंकि हमारी ज़्यादातर किसान कम्युनिटी जो है ये अनपढ़ तबके से तल्लक रखती है। इस कार्ड को कैश करवाना, फिर इस पे फैसिलिटी हासिल करना, फिर इस पे सब्सिडी हासिल करना, उसके लिए इंतहाई मुश्किल काम है। काश्तकारों का मौक़िफ़ है कि अगर हुकूमत ज़राअत सेक्टर को तरक्की देना चाहती है तो बराह रास्त सब्सिडी से ही ऐसे इक़दामात किए जा सकते हैं जिनसे कोई फ़ायदा भी मिल सकता है। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक का कहना है कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान माजी में हवाई अड्डों के हवाले से होने वाले मुआहदे को आवाम के सामने लाया जाए। अपोजिशन और हुकूमत की मुशावरत से इंतखाबी इस्लाहात वक्त की अहम ज़रूरत है। अमीर जमात इस्लामी ने 3 रोज़ा दौरे का आखिरी दिन भी मसरूफियत में गुजारा। मीडिया से गुफ्तगू में सिराजुल हक का कहना था, हुकूमत महंगाई का सुनामी अपने साथ लाई है। गुज़िश्ता 3 साल से मुल्क में आटा, चीनी, घी, अद्वियात, रिंग रोड समेत हर स्कैंडल के पीछे हुकूमती लोग हैं, मगर कोई उनसे नहीं पूछता। पुरानी मिस्त्री है और नया पाकिस्तान है, और इस बजट में जो ऐलानात किए गए थे, हमें अफसोस है कि अभी बजट पास भी नहीं हुआ है और हुकूमत ने यू टर्न लेना शुरू किया और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, और जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो तो फिर हर चीज़ की कीमत में इजाफा होता है। हुकूमत ने गुज़श्ता 3 सालों में मुसलसल अवाम को धोखा दिया है और कोई वादा पूरा नहीं किया। जमात इस्लामी की जानिब से मुनक्दा इत्तेहादे उम्मत उलमा कन्वेंशन से खिताब में सिराजुल हक का कहना था, आइंदा माली साल का बजट 8400 अरब रुपए का है, जिसमें से 3000 अरब सूद की अदायगियों पर खर्च हो जाएंगे तो आवाम के लिए क्या बचेगा। 3.4 ट्रिलियन रकम सूद के अदायगी के लिए रखे गए हैं, तो जब 8 ट्रिलियन में से 3 ट्रिलियन सूद में चला जाएगा, बाकी बजट कहां का रह जाएगा। सूदी निजाम की वजह से इस वक्त 4.3 ट्रिलियन कर्जा है पाकिस्तान पर, 43,000 अरब कर्जा है पाकिस्तान पर। सिराजुल हक का मजीद कहना था, मुसलमानों को तकसीम करके निशाना बनाया जा रहा है। इत्तेहाद उम्मत वक्त की अहम जरूरत है। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। कि फैसलाबाद के मुतादिद ट्रैफिक सिग्नल्स खराब, कहीं ट्रैफिक सिग्नल नाकारा तो कहीं सिरे से ही मौजूद नहीं। ट्रैफिक वार्डन्स की गैर मौजूदगी से मैनुअल ट्रैफिक कंट्रोल निज़ाम भी मुतासर होने लगा है। वकास अहमद बेग रिपोर्ट कर रहे हैं। फैसलाबाद के कई चौराहों पर लगे ट्रैफिक सिग्नल्स नाकारा हो गए हैं। चौक में ड्यूटी करने वाले ट्रैफिक वार्डन भी गायब रहते हैं। मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक बेहंगम दिखाई देने लगी है। अक्सर ट्रैफिक सिग्नल बिजली की बंदिश के वक्त मुतबादिल निज़ाम न होने पर भी बंद रहते हैं। ट्रैफिक का सबसे बड़ा मसाइल तो यह है कि जब लाइट चली जाती है तो इशारे बंद हो जाते हैं। ना जामिया चिश्तिया चौक में इशारा है, ना उधर से पता लगता कि कहाँ जाना है, किधर से किधर जाना है, और हलालिया में चौक में भी कोई इशारा नहीं है, और वार्डन पुलिस, ट्रैफिक पुलिस भी नहीं होती मौजूद, और ना कोई रोकने वाला है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का निज़ाम बहुत बुरा है। सरगोदा रोड और मिल्लत रोड पर मुश्तरका बने जामिया चिश्तिया चौक में ट्रैफिक सिग्नल्स मौजूद तो हैं, मगर चलते और ना ही ट्रैफिक कंट्रोल करने में मदद फराहम करते हैं। ये ट्रैफिक सिग्नल्स कम और कबाड़ की दुकान पर लटकते पुराने लोहे के मनाजर ज्यादा पेश करते हैं। ट्रैफिक सिग्नल के ये मसाइल हैं कि जो मेन चौक है उधर इशारे वगैरह नहीं लगे हुए, वार्डन वाले साइड पे बैठे होते हैं, अवाम इशारे तोड़ रही है, किसी को कुचल के चले जाती है, कोई पूछने वाला नहीं है, कानून नाफिज करने वाले अदारे सो रहे हैं। ट्रैफिक हुकाम कहते हैं ट्रैफिक सिग्नल लगाना और फाल रखना ट्रैफिक पुलिस का नहीं बल्कि टाउन म्यूनिसिपल कमेटी का काम है। ट्रैफिक पुलिस तो लगे सिग्नल पर खिलाफ वर्जी करने वाले शहरियों के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार रखती है। कहीं बिजली की बंदिश के बायस बंद इशारे तो कहीं सिरे से ट्रैफिक सिग्नल मौजूद ही नहीं। फैसलाबाद में ट्रैफिक सिग्नल ना होने से इंतहाई बेहंगम होती जा रही है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस है कि सब अच्छा है की बात करती है। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41। ग्राउंड आबाद हों तो हस्पताल वीरान पड़ जाते हैं, मगर चिन्योट के नौजवान खेलों की सरगर्मियों से महरूम। ग्राउंड की सहूलत ना होने पर नौजवान खिलाड़ी ताफुनज़दा माहौल में खेलने लगे। धूल मिट्टी और जगह जगह लगे कचरे के ढेरों पर नौजवान खेलने पर मजबूर हैं।
जिला चनियोट हुकूमती तवज्जो का मुंतजिर। चनियोट के शहरी खेलों की सरगर्मियों से महरूम हैं। सरकारी ग्राउंड न होने से नौजवान खिलाड़ी मायूसी का शिकार हैं। धूल मट्टी और लगे कचरे के ढेरों पर खेलने में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। नौजवानों का कहना था कि ग्राउंड्स के लिए हुकूमत ने वादे किए जो ताहाल वफा न हो सके। खेल सेहत के लिए इंतहाई जरूरी है। 2009 में चनियोट को जिले का दर्जा मिला, उस दिन लेकर अब तक 2021 आ चुका है, हमारे पास कोई प्ले ग्राउंड नहीं है। अगर कोई ग्राउंड है तो उधर कब्जा माफिया है, उन्होंने अपने हर चीज ऊपर बिछाई हुई ग्राउंडों पर। बच्चे कहाँ जाएं खेलने के लिए, हमारे पास कोई प्ले ग्राउंड नहीं है। नौजवानों ने डिप्टी कमिश्नर चनियोट और मुतलका अफसरान से मुतालबा किया कि सरकारी सतह पर खेलों के लिए ग्राउंड की सहूलियात फराहम की जाए। आपको बताएं कि फैसलाबाद के रेलवे रोड पर तजावुज़ात की भरमार, ताजिर बरादरी परेशान। कहते हैं कि दुकानदार अपना सामान दुकानों के बाहर रखते हैं, रिक्शे भी रोड पर खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक का निज़ाम भी मुतासिर हो रहा है। इसी पर तफसीलात जानेंगे फजील अहमद की इस रिपोर्ट में। रेलवे रोड शहर की मसरूफ तरीन शाहराहों में शुमार होती है, जहां तजावुज़ात की भरमार है। सड़क किनारे रिक्शे भी खड़े रहते हैं। तजावुज़ात की वजह से ताजर भी परेशान दिखाई देते हैं। ताजर कहते हैं कि रोड पर रिक्शे खड़े होने और दुकानदारों के सामान बाहर रखने की वजह से ट्रैफिक का निज़ाम भी दरहम बरहम होकर रह गया है। ग्राहकों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोग अपना सामान दुकानों की बजाय बाहर रख रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक का क्योंकि फ्लो पहले बहुत ज़्यादा है, तो उसके अलावा चिंची रिक्शे वाले जहां इनका दिल करता है वो रोक लेते हैं। उसकी वजह से जो ट्रैफिक है वो बहुत डिस्टर्ब हो रही है। रेलवे रोड के ताजरों ने मुतालबा किया है कि कारपोरेशन हुकाम रेलवे रोड पर तजावुज़ात के खात्मे के लिए ऑपरेशन करें। ट्रैफिक पुलिस रक्षों के बीच सड़क खड़े होने को रोके। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। आपको बताएं कि चनियोट के सैटेलाइट टाउन में मौजूद इलामा इकबाल पार्क मलबे का ढेर बन गया। पार्क के चारों तरफ पड़े मलबे और कचरे के ढेर म्यूनसिपल इंतजामिया की राह तक रहे हैं, जबकि पार्क में जानवर सरेआम फिरने लगे हैं। सैटेलाइट टाउन चनियोट का अलामा इकबाल पार्क म्यूनसिपल इंतजामिया की गफलत के बायस खस्ताली का शिकार हो गया। पार्क में लगाए गए घास की कई माह बाद भी कटाई न हो सकी, जबकि चारों तरफ पड़े मलबे और कचरे के ढेर इंतजामिया की राह तकने लगे। पार्क में सहूलियात का फुकदान होने पर शहरी इंतजामिया की कारकर्दगी से मायूस दिखाई दिए। शहरी सैर तफरीह के गर्ज से पार्क का रुख करते हैं, लेकिन म्यूनसिपल अफसरान ताहाल पार्क की इंतजार को बेहतर न बना सके। शाम के टाइम तो ये बिल्कुल जो है ना, ये एक चरागाह का मंजर पेश कर रहा होता है पार्क। 12 एप्लीकेशंस और देने के बाद भी जो है इस पार्क की तरफ इंतजामिया की कोई तवज्जो नहीं है और ताफन फैल रहा है, गंदगी का ढेर बना हुआ ये पार्क। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर चनियोट से मुतालबा किया कि पार्क की सफाई सुथराई को यकीनी बनाया जाए, ताकि सैर व तफरीह के घर से आने वाले शहरियों को दुश्वारी का सामना न करना पड़े। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चनियोट। आपको बताएं कि शहरी को गैर कानूनी हिरासत में रखने का मामला। SHO निशादाबाद समेत 6 अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया। शहरी को गैर कानूनी हिरासत में रखने पर एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। राय फारूक अहमद ने बतौर SHO निशादाबाद शहरी को गैर कानूनी हिरासत में रखा। इस मामले पर ASI मुख्तार अहमद, एहलकार अमजद अली, उमर हयात, नदीम और लियाकत भी गैर कानूनी हिरासत में शामिल रहे, जबकि मुतासरीन की दरख्वास्त पर SP AIB ने इंक्वायरी में गैर कानूनी हिरासत का इल्ज़ाम दुरुस्त करार दिया, जिस पर AIG इंक्वायरीज ने SHO और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। कानूनी और महकमाना कार्रवाई करके 15 दिन में रिपोर्ट की जाएगी। आपको बताएं कि फैसलाबाद के छोटे क्रिकेटर का बड़ा दावा। 10 साला अली साबिर ने इंटरनेशनल बाउलर हसन अली को चौके छक्के लगाने का चैलेंज कर दिया। तफसीलात के लिए अली रजा की रिपोर्ट देखते हैं। फैसलाबाद के 10 साला अली साबर की बैटिंग के चर्चे सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। अली साबर का कहना था कि हसन अली को खेलना मुश्किल है, मगर चौके छक्के लगा सकता हूं। हसन अली सीनियर खिलाड़ी हैं, उनकी इज्जत करता हूं, मगर क्रिकेट में कोई समझौता नहीं है। तो मुझसे बहुत सीनियर हैं, पर मैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से खेल सकता हूँ और अच्छी हिटिंग कर सकता हूँ। शॉट वगैरह मैं मार सकता हूँ, जितनी मैंने प्रैक्टिस की है उसके इतना टफ नहीं है ये बॉलर। अली साबर का कहना था कि अगर मुझे कौमी टीम में खेलने का मौका मिले तो पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करूंगा। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ अली रजा, फैसलाबाद। कि किसान बेमौसमी सब्जियां उगाकर ज्यादा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। ग्रीन फार्म्स फैसलाबाद में टनल फार्मिंग पर तरबियती वर्कशॉप। काश्तकारों को गर्मियों में खीरे और करेले की पैदावार हासिल करने से मुतालिक आगाही दी गई।
ग्रीन फार्म फैसलाबाद में टनल फार्मिंग के मुतालिक तरबीती वर्कशॉप में किसानों ने शिरकत की। चेयरमैन रिसर्च बोर्ड साजिद सिंधु का कहना था कि काश्तकारी के जदीद रुझानात को फरोग देने से पैदावार में कई गुना इजाफा किया जा सकता है। आज के दिन में हमने पूरे पंजाब से जो अच्छे और जिम्मेदार किस्म के फार्मर्स थे, जो एडवांस फार्मर्स थे, उनको यहाँ पे दावत दी कि वो आके देखें। फैसलाबाद में हमने एक कामयाब तजर्बा करते हुए यहाँ पे बेहतरीन किस्म की पैदावार हासिल की, टमाटर की, यहाँ पे खीरे की, यहाँ पे करेले की, और ये कम रकबे से इनडिटर्मिनेट फैशन से प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर के ज़रिए हमने टनल फार्मिंग की और इसकी पैदावार आम फार्मिंग की निस्बत जो है, आम पैदावार की निस्बत जो है, ये 3 से 4 गुना नॉर्मल होती है और बाज़ सूरतों में ये 6 से 7 गुना तक भी चली जाती है। तरबीती वर्कशॉप में चेयरमैन रिसर्च बोर्ड और दीगर ज़राई माहिरीन ने किसानों को गर्मियों में खीरे और करेले की ज़्यादा पैदावार हासिल करने से मुतल्लिक आगाही दी। फसल नूं अच्छा रखने वास्ते फसल नूं जो कुछ इन्होंने ये कीता वा ये जदीद आ। इस तो भी अगे हुण ते दुनिया ते इस तो अगे चले गई आ, लेकिन साडे जिमीदार अजे इहदे ते नहीं आया। ਜਦੋਂ कि जिमीदार इह ते आएगा उस ਉਹਨੂੰ ज़्यादा फायदा होएगा। ਹੁਣ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਆਰਗੈਨਿਕ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਰੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਆ ਕਰੇਲਾ ਜਦੋਂ ਮੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ। शुरा को टनल फार्मिंग के तहत लगाई गई फसल का विजिट भी करवाया गया। साजिद सिंधु का कहना था कि किसान बेमौसमी सब्जियां उगाकर ज्यादा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। इस मौका पर एग्रीकल्चर टूरिज्म कारपोरेशन के तारिक तनवीर, ज़राई माहिर डॉक्टर शहजाद बसरा और दीगर भी मौजूद थे। कैमरामैन शाहजेब के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद में IG जेल मिर्जा शाहिद सलीम बेग की आमद, DIG सईदुल्लाह गोंदल, मिनिस्टर एक्साइज हाफिज मुमताज समेत तमाम जेलों के सुपरिटेंडेंट्स भी मौजूद। IG जेल ने जेल के जवानों के लिए मेस का इफ्तिताह कर दिया, जबकि रीजन भर की जेलों के मुलाजमीन के लिए बड़े खाने का भी एहतमाम हुआ। डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद में हुआ तमाम जेल अफसरान और मुलाजमीन के लिए बड़े खाने का एहतमाम, तो मेहमान खसूसी भी बड़े। IG जेल खाना जात मिर्जा शाहिद सलीम बेग बतौर मेहमान खसूसी तशरीफ लाए तो जेल मुलाजमीन के चेहरे भी खुशी से खिल उठे। IG जेल मिर्जा शाहिद सलीम बेग ने नौजवानों के लिए शानदार मेस का इफ्तिताह किया और वहाँ मौजूद दीगर अफसरान के साथ गेम्स भी खेली। जेल चौधरी असगर, सुप्रीडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल अली अकबर, सुप्रीडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल टोबा असफ अजीम, एडिशनल सुप्रीडेंट सेंट्रल जेल मियां उमर, सुप्रीडेंट बोस्टल जेल आफ्ताब भी मौजूद थे। तकरीब में IG जेल और DIG सईदुल्लाह गोंदल ने तमाम मुलाजमीन से खिताब भी किया। मुख्तलिफ से टॉपिक पर मैं बात करूँगा, कोशिश करूँगा कि तमाम टॉपिक्स का अहाता किया जाए। जब मैं अंडर ट्रेनिंग था तो उस वक्त मैंने मसाइल देखे थे, 2 मसाइल कि एक तो वार्डर गार्ड को छुट्टी नहीं मिलती और दूसरा पढ़ने लिखने के मौके नहीं मिलते। कि कोरोना की वजह से हमारी आपस में मिलने की और इस तरह खाने की जो दावतें थी वो ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदौलत हमारी जो कोरोना से काफ़ी हद तक जो है वो हालात बेहतर हुए। तकरीब में आने वाले मेहमानों के लिए म्यूजिकल प्रोग्राम का भी एहतमाम किया गया, जिससे सब लुत्फानंदोज हुए। डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद में जेल अफसरान और मुलाजमीन इस गेट टुगेदर से खूब महजूज हुए। ताहम उनकी जानिब से ये मुतालबा भी सामने आया कि आइंदा मुस्तकबिल में भी इस तरह के इवेंट्स का इनेकाद होना चाहिए। कैमरामैन राशिद के साथ फरजाना सदीक, फैसलाबाद। अभी आपको बताएं कि टोबा टेक्सिंग में सीनियर सहाफ़ी आतिफ सईद की जानिब से महफिल मिलाद का इनेकाद। मरकजी नायब सदर PTI चौधरी अशफाक, डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद समेत मुतादिद शख्सियात की शिरकत। मुल्क की सलामती और कोरोना से निजात की दुआ की गई। सीनियर सहाफ़ी आतिफ सईद की जानिब से महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया, जिसमें PTI रहनुमा चौधरी मोहम्मद इशफाक, डिप्टी कमिश्नर टोबा उमर जावेद, ADCR मुदस्सर बुखारी, साबका चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी चौधरी गुलाम नबी गुज्जर, साबका सदर डिस्ट्रिक्ट बार चौधरी नासिर इकबाल, सदर मरकजी अंजुमन ताजना हाजी आमिर हनीफ, चेयरमैन प्रेस क्लब राना मोहम्मद खान, चौधरी मोहम्मद सलीम नंबरदार और सीनियर सहाफ़ी राना खालिद महमूद समेत दीगर दोस्त अहबाब और अजीज़ और कारब ने शिरकत की। इस मौके पर चौधरी इशफाक का कहना था कि कोरोना वबा की वजह से हमारी तमाम मसरूफियात खत्म हो चुकी थी। सहाफ़ी और सियासी शख्सियात का आपस में चोली दामन का साथ है। सहाफ़ी और सियासतदानों का आपस में चोली दामन का साथ है। आज हमारे भाई ने ये इस्तेमाल किया है, दोस्तों के लिए यहाँ इकट्ठ हुआ है, महफिल हुई है, तो इसमें शिरकत मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। अल्लाह ताला हमारे आतिफ सईद साहब को लंबी ज़िंदगी दे।
कारी मोहम्मद अहमद फैज गौलड़वी, साहबजादा मौलाना मोनम हसनैन सदीकी और मुफ्ती नुमान शाह की जाम से मुल्क की सलामती और कोरोना से निजात के लिए खसूसी दुआ करवाई गई। कैमरामैन जवार मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। अपना घर फैसलाबाद में फादर डे के हवाले से तकरीब का इनेकाद। सूबाई वजीर ख्याल अहमद कासरू ने खुसूसी शिरकत की। फादर डे की मुनासबत से अपना घर फैसलाबाद में अंजुमन इस्लामिया की जानिब से तकरीब मुनक्कद हुई। इस मौका पर सूबाई वजीर ख्याल अहमद कासरो का कहना था कि अंजुमन इस्लामिया बहुत ही नेक और अच्छा काम कर रही है और हम हर तरह से अंजुमन इस्लामिया के साथ हैं। इंशाअल्लाह ताला हम इस तंजीम के साथ हैं। इस तंजीम को बच्चों के मामले में कोई मुश्किलें होंगी, कोई जॉब की मसला होगा, हम हर तरह से इनके साथ हैं, तो हम इस नेक काम में इनके साथ हैं। सदर अंजुमन इस्लामिया परवेज खालिद शेख का कहना था कि यतीम बच्चों के साथ आज का दिन मना रहे हैं। इन्होंने कहा कि जिनके बाप का साया इनके सरों पर है, इनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो अपने वालिद की कदर करें और इनकी खिदमत करें। यहाँ पे हम बच्चे वही हैं जिनके फादर नहीं हैं, तो उनको ये एहसास ना हो कि हमारा बाप नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि उनकी सारी ज़रूरियातें ज़िंदगी यहाँ से पूरी करें। अंजुमन इस्लामिया के तमाम मेंबरान तकरीब में शरीक हुए। बच्चों को तोहफ़े भी दिए गए। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। फिल वक्त इतना ही।